Ignited Minds Tutorials, a leading online educational platform, is now offering a comprehensive series of educational videos on the topic of areas related to circles for students studying in Class X CBSE and Maharashtra State Board. With a focus on enhancing knowledge and understanding in the field of mathematics, these videos provide valuable explanations and insights into this important topic. In these videos, students will learn about various concepts related to circles, including the area of a circle, circumference, and radius. The tutorials delve deeper into understanding the relationship between these different aspects and how they contribute to the calculation of areas related to circles. Clear examples and step-by-step explanations are provided to ensure that students grasp the concepts effectively. These instructional videos are designed to simplify complex mathematical concepts and make them more accessible to students. By watching and engaging with these educational resources, students can improve their problem-solving skills and enhance their overall understanding of areas related to circles. This knowledge will not only benefit them in their academic pursuits but also in various practical applications in real life. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality educational content that caters to the needs of students from various boards, including CBSE and Maharashtra State Board. These videos on areas related to circles are an invaluable resource for students seeking to strengthen their mathematical foundation and excel in their academic journey. Related to circles, actually में स्टेट बोर्ड में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ही वो चैप्टर एक्सटेंडेड है, ये टॉपिक एक्सटेंडेड है. फर्स्ट टर्म के बाद यही वाला टॉपिक आता है, ठीक है. तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज बेसिकली तो सर्कल है भाई साहब. सर्कल क्या होता है वैसा देखो गोला बना, ठीक है. So whenever you are drawing a circle, you have to have a center. Okay? So there is a center. The locus of all points which are equidistant from this center will actually make up the circle. ठीक है? ऐसे सारे points का location जो इस center point से equal distance पे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? Circle. ठीक है? Okay. So this is basically a circle. Area of a circle कितना होता है? Pi r square. एकदम बचपन से पढ़ते हैं भाई साहब. Circumference क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड भाई साहब. जो हनी वही पांडे, वो पांडे वही हनी भाई साहब. दिस विल बी सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर. 7th 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स है भाई साहब ये. 2 पाई आर. सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर. और हम यहाँ पे देखो इस 2r को क्या लिख सकते हैं? इस 2r को हम भाई साहब d लिख सकते हैं. दिस 2r कैन बी रिटन एज d और अपन इसको पाई d भी लिख सकते हैं. ठीक है? ओके ओके ओके. सेमी सर्कल भाई साहब क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ अ सर्कल. सो दिस विल बी बेसिकली, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्कल. किसी भी डायमीटर को जब आप ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज द डायमीटर? द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल व्हिच विल पास थ्रू द सेंटर. whenever you are drawing a diameter within a circle, it is always going to divide the circle into two equal parts. ठीक है? So this is going to divide into two equal parts. The area of the semicircle is equal to half into area of the circle. That will be half into pi r square. That is, तो यहाँ पे देखो अभी देखो ये हो गया एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, मतलब हाफ ऑफ, ये आपका हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर. ठीक है? ये एरिया हो गया. और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर मतलब होता है, देखो ये पूरा कितना था? दिस वाज बेसिकली 2 पाई आर. तो इसका आधा कितना होगा? पाई आर. और ये कितना है? डी. तो ये वाला हो गया भाई साहब आपका आधा, दैट इज पाई आर. देखो हाफ इंटू 2 पाई आर. तो ये बना भाई साहब आपका पाई आर. तो इतना डिस्टेंस आपका कितना हो गया? पाई आर. और इतना डिस्टेंस आपका कितना हो गया? डी. सो दिस विल बी पाई आर प्लस डी. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है? सो दिस विल बी पाई आर प्लस डी. तो दिस डी को अपन क्या बोल सकते हैं? डी को अपन 2r भी बोल सकते हैं. ठीक है? ओके ओके ओके. रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles. इजी सा सवाल है. देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है? 19 सेंटीमीटर. R2 की वैल्यू कितनी है? 9 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो आपका भाई साहब यहाँ पे रेडियस यहाँ पे R1 हो गया और ये भाई साहब R2 हो गया. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल्स. ठीक है? तो एक ऐसे सर्कल का रेडियस आपको डिटरमिन करना है जिसका सर्कमफरेंस इन दोनों सर्कमफरेंसेस के एडिशन के बराबर हो. ठीक है? तो इसका सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r1. इसका सर्कमफरेंस भाई साहब 2 पाई r2. लेट्स से आपको एक तीसरा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस इन दोनों के सर्कमफरेंसेस का सम हो. ठीक है? सो लेट्स से ये हो गया आपका 2 पाई r. अभी हमने अगर इसको डिवाइड कर दिया भाई साहब किससे? 2 पाई से. ठीक है? तो ये 2 पाई, ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. तो r विल बी इक्वल टू कितना? r1 प्लस r2.
तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 19 + 9 दैट इज 28 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल which will have a circumference which is the sum of the circumferences of the two circles will be equal to 28 सेंटीमीटर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके. तो ये हो गया आपका R1 R2. तो यहाँ पे हो गया आपका 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस R2. तो आपने भाई साहब इस 2 पाई को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया आपका 28 सेंटीमीटर. Radius of the bigger circle is 28 centimeter. Radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to this. ठीक है. तो भाई साहब एक सर्कल का रेडियस है कितना 8 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस है कितना भाई साहब 6 सेंटीमीटर. इसका एरिया ऑब्वियसली क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया ऑब्वियसली क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर. ठीक है, पाई R1 स्क्वायर और इसका एरिया हो गया आपका पाई R2 का स्क्वायर. रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो आपको एक ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया उन दोनों, हाँ उसके अंदर ही घुस जा भाई साहब, तू घर बना ले घड़ी के अंदर, उसके उसको पकड़ के लटक जा भाई साहब, 5:30 बज जाएंगे. ठीक है, तो आपका यहाँ पे पाई, तो लेट्स से ये वाला इसका एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस, तो जिसका एरिया इन दोनों के एरियाज के बराबर हो. तो इसका लेट्स से हमने सर्कल का रेडियस माना ये, तो पाई R का स्क्वायर. सो पाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर. तो ये अगर मैंने डिवाइड कर दिया इसको पाई से, तो सारे पाई साहब कैंसिल हो जाएंगे. R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर. So this will be 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. That's going to be how much? 64 plus 36. That's going to be 100. R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100. So therefore R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर. So radius of the circle which will have an area equal to the sum of the areas of these two circles will be 10 centimeter. Are we clear? Okay, okay, okay. तो यहाँ पे हो गया R1 और R2. तो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल भी R. तो आपने भाई साहब यहाँ पे पाई R स्क्वायर मान लिया, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. तो यहाँ पे पाई का कैंसिल हो गया, 64 प्लस 36. तो आपका रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर और एरिया जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है. न्यूमेरिकली इक्वल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यूनिट वाइज तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. ठीक है, एक का यूनिट होगा सेंटीमीटर में और दूसरे का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. एक का यूनिट अगर मीटर में हुआ तो दूसरे का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर. ठीक है. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then find the radius of the circle. Perimeter भाई साहब कितना होता है 2 पाई r और एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर. ये दोनों अगर बराबर हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली, तो अपन क्या बोल सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. पाई पाई कैंसिल हो गया, एक r और एक r कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. खत्म भाई साहब. ठीक है, the radius of the circle is 2 units, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, whatever you want to say. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप सीधा लिख दोगे रेडियस ऑफ द सर्कल हैज टू बी 2 यूनिट्स. क्लियर है भाई साहब? ओके. सो आप यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल 2 पाई r इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. ओके, अभी आपका देखो, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. कैसे आप एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड आउट करेंगे? आप इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, सिंपल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब पाई r का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. आर वी क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब शेडेड पोर्शन. तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज एरिया ऑफ द बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल. तो यहाँ पे है भाई साहब फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट. मतलब ये आप आर्चरी करते हैं ना, जो तीरंदाज. ठीक है, सो target marked with 5 scoring areas from the center: gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing the gold score is 21. ये वाला भाई साहब आपका कितना है? Diameter of this region is 21 centimeter. ठीक है, and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. तो हर एक भाई साहब कितना है 10.5 सेंटीमीटर वाइड हर एक बैंड. तो यहाँ पे आपका 10.5 सेंटीमीटर हो गया. ध्यान दे यहाँ पे तो ये हो गया 10.5 इधर और 10.5 इधर, है ना. तो आपका टोटल डायमीटर इंक्रीज कितना हो जाएगा? तो ये आपका 10.5 प्लस 10.5 प्लस 5 दिस विल बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है? हर बार आप क्या करोगे भाई साहब, ये 10.5 ऐड करते जाओगे, मतलब हर बार आप क्या कर रहे हो 21 ऐड करते जा रहे हो. ठीक है, ओके. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स.
ठीक है, देखो भाई साहब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले वाले में 21/2, ठीक है 21/2। तो गोल्ड वाले का एरिया हो जाएगा पाई आर, लेट्स से गोल्ड लिख दिया हमने इसको आर स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 11 जा 7 3 जा 21, बाकी का कैलकुलेशन तुम्हें मुबारक, ठीक है। फिर आपका आ गया भाई साहब रेड, रेड का भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो 21/2, टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, रेड का डायमीटर हो जाएगा 21 + 21 दैट इज 42। तो डायमीटर अगर 42 हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब 21। तो पाई आर रेड का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। अभी एरिया ऑफ द स्कोरिंग रीजन है भाई साहब, आपको रेड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इस पूरे का एरिया फाइंड कर लो, चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो कितना कितना आ गया भाई साहब आपका 22/7 इंटू यहाँ पे हो गया आपका कितना 42/2 इंटू 42/2, है कि नहीं। तो ये हो गया 11, 7 6 जा 42, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब 33। ये हो गया 33 इंटू 42, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 113। ये हो गया 6 7 8 3, 1386 हो गया भाई साहब, ठीक है। दिस इज 1386। और ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी 11 3 जा 33, 33 माइनस 21/2, ठीक है। तो भाई साहब 33 इंटू 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 693 हो गया ये। तो दिस विल बी -693/2, इतना आएगा भाई साहब आपका रेड का एरिया। मतलब आपको इसका एरिया निकालना है, इसमें से इसके एरिया को माइनस करना है, ठीक है। तो उसका आएगा रेड का एरिया। फिर आपको क्या करना है भाई साहब, आपने इसका एरिया निकाल लिया। अभी भाई साहब इसका एरिया जब निकालेंगे तो इस ब्लू वाले से इस पूरे एरिया को माइनस करना है। फिर आपके भाई साहब ब्लैक वाले से इस पूरे एरिया को माइनस करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू विल बी एबल टू बेसिकली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज कलर्ड रीजन्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन माइनस एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल होता है भाई साहब ये, ठीक है। सो इसी हिसाब से भाई साहब देख लो एरिया रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन ये कितना हो जाएगा 21/2 दैट इज 10.5, ठीक है। और सब में 10.5 ऐड करते जाएंगे भाई साहब, ठीक है। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर दैट इज, तो ये हो गया भाई साहब आपका 346.5 बराबर 346.5 आ जाएगा गोल्ड का एरिया, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ गोल्ड सर्कुलर रीजन। गोल्ड सर्कुलर रीजन का एरिया कितना आ गया भाई साहब, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द रेड रिंग। रेड रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेड सर्कुलर रीजन माइनस एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया, तो आपका R1 प्लस इसका रेडियस कितना होगा R1 प्लस 10.5, ये R1 प्लस 10.5 दैट विल बी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसी तरह से एरिया ऑफ द रेड रिंग विल बी पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो 22/7 बाहर निकाल लो, 21 स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, so that will be how much a square minus b square है a plus b into a minus b। तो यहाँ पे आ गया भाई साहब आपका 1039। अभी ये जो 1039 आया है ये पूरा एरिया है ये वाला। अभी इसमें से अगर आपको रेड का एरिया फाइंड आउट करना है तो इस 1039 से आप क्या ही माइनस कर दोगे, जो गोल्ड का एरिया आपने निकाला था तो वो रेड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये आया आपका एरिया ऑफ द रेड रिंग, आपका ये आ गया, अच्छा माइनस किया है हमने, ओके ठीक है, आपने माइनस किया है, ओके। सो दैट विल बी बेसिकली 1039। इसी तरह से भाई साहब आप सबका फाइंड आउट करते रहेंगे। ब्लू का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ब्लू सर्कुलर रीजन माइनस एरिया ऑफ द रेड सर्कुलर रीजन। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पाई R3, तो पाई को अपने बाहर निकाला, R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, अगेन पाई इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1732। इसी तरह से भाई साहब आप सारे एरियाज को यहाँ पे फाइंड करेंगे। आपके पास अगर बहुत खाली टाइम होगा तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, ठीक है। और इन सवालों को आपको बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ब्लैक रीजन हो गया भाई साहब ये, दिस विल बी एरिया ऑफ द व्हाइट रिंग। तो व्हाइट रिंग की वैल्यू हो जाएगी जितना टोटल रेडियस उसका आ गया है माइनस उसके पहले वाले का रेडियस, ठीक है। PQRS इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आप देखो भाई साहब यहाँ पे PQRS क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या हो गया, क्या हो गया, किसको मारना है, इसका डायमीटर कितना है भाई साहब, PQRS इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल PQRS, और ये डायमीटर भाई साहब कितना है 6 सेंटीमीटर का। ये वाला डायमीटर भाई साहब कितना है भाई साहब 6 सेंटीमीटर का, ठीक है।
द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड आर एस आर इक्वल, तो ये वाला पी क्यू, क्यू आर और आर एस, ये पी क्यू, क्यू आर और आर एस तीनों भी इक्वल है, मतलब कितने के हो जाएंगे, सब दो दो के हो जाएंगे कि नहीं, 6 को आप 2 में डिवाइड कर दीजिए, 3 में सॉरी, 2 2 और ये 2, ठीक है। ओके, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब ग्रीन रीजन का आपका पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, पीएस रीजन, पीएस रीजन का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर का हाफ, हाफ इंटू 2 पाई आर, कौन सा आर भाई साहब, ये 6 सेंटीमीटर का, तो हाफ इंटू 2 इंटू 22 बाई, या पाई लिखते हैं आप इसको, पाई इंटू आर, आर की वैल्यू है यहाँ पे 6, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 6 पाई, तो पीएस का भाई साहब हो गया 6 पाई। अभी पी क्यू का कितना हो जाएगा बोलो, पी क्यू का, दैट विल बी ऑल्सो सेमी सर्कल है, हाफ इंटू 2 पाई आर, ये कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया पाई, और ये हो गया आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी, अच्छा 6 नहीं होगा यार, 6/2 होगा ना, 6/2 होगा, 6 तो भाई साहब डायमीटर हो गया, तो 6/2 तो भाई साहब हो गया 3, तो ये हो गया आपका 3 पाई, ठीक है। सो पीएस हो गया आपका 3 पाई, क्या ये समझ में आ रहा है? अरे भाई साहब देखो, ये पूरा कितने का है, 6 डायमीटर, ये आपका 6 का, इसको आपने इक्वली डिवाइड किया, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो भाई साहब ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर, आर की वैल्यू, तो हाफ इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर कितना हो जाएगा, 6/2, तो ये कैंसिल हो गया और ये 3 हो गया, दिस विल बी 3 पाई, तो पी एस लेंथ जो है वो हो गई आपकी 3 पाई, ठीक है। अभी आपको भाई साहब पी क्यू की लेंथ निकालनी है, तो पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 2 पाई, और अगेन यहाँ पे हाफ इंटू 2 इंटू पाई इंटू इसका आर कितना हो जाएगा बोलो, 2/1, ठीक है, 2/2, तो ये और ये कैंसिल, और ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका पाई, पी क्यू का लेंथ कितना आ गया भाई साहब आपका पाई, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब क्यू एस का लेंथ, क्यू एस का लेंथ, तो क्यू एस का लेंथ भाई साहब कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 पाई आर, सो दैट विल बी, ये कैंसिल, ये हो गया पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, 4/2, तो 4/2, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है नहीं, आर की वैल्यू है 2, तो ये हो गया आपका 2 पाई। अब भाई साहब इसको ऐड कर लीजिए, टोटल ये हो गया आपका 3 पाई, ठीक है, ये वाला क्या हो गया भाई साहब कितना, पाई, और ये वाला आपका हो गया भाई साहब 2 पाई, तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, 3 पाई प्लस 2 पाई, 4 5 6 पाई आ जाएगा आपका टोटल लेंथ, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो 6 पाई हो गया भाई साहब आपका पेरीमीटर, एरिया कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द एरिया, तो आप भाई साहब क्या क्या माइनस करोगे, ये पूरा एरिया निकालोगे, इस पूरे एरिया में से आप पहले हाफ को माइनस कर दो, ठीक है, तो हाफ हाफ पहले निकाल लेते हैं भाई साहब, इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं, इस पूरे का, ठीक है, पहले हम हाफ सर्कल का अगर एरिया निकाले तो हाफ इंटू पाई आर का स्क्वायर, सो हाफ इंटू पाई, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, 6/2, दैट इज 3 का स्क्वायर, ठीक है, सो दिस विल बी 9/2 पाई, 9/2 पाई हो गया पूरा, इसमें से भाई साहब आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाफ इंटू पाई, इसका एरिया कितना होगा भाई साहब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ पाई इंटू 4, तो ये हो गया आपका कितना, 2 पाई, ठीक है, मतलब इस पूरे वाले एरिया में से इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 9/2 पाई माइनस 2 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 माइनस 4 पाई, तो ये हो गया आपका 5 पाई/2, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस विल बी 5 पाई/2, ये 5 पाई/2 कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया, इतना एरिया, अभी इसमें आप और ये ग्रीन वाला एरिया जोड़ देंगे, ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका रेडियस है 2, तो हाफ पाई आर का स्क्वायर, हाफ इंटू पाई इंटू 2/2, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा पाई/2, तो कर लो भाई साहब 5 पाई/2 प्लस पाई/2, ये हो गया आपका 6 पाई/2, दैट इज इक्वल टू 3 पाई, ये हो जाएगा आपका टोटल एरिया, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, पहले आपने क्या किया, एक सर्कल लिया, उस सर्कल का हाफ निकाला, उस सर्कल का हाफ एरिया क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, उसमें से आप इस पोर्शन को माइनस कर देंगे, इसके एरिया को माइनस कर दो, तो वो जो आया मतलब इस वाले पोर्शन का एरिया आया, इसमें अभी इसका एरिया ज्वाइन करना है, इस तमाम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करेंगे तो आपका एरिया कितना आ जाएगा भाई साहब, 3 पाई, दैट विल बी द एरिया। क्लियर,
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो आप पहले यहाँ पे रेडियस 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, अरे यार मैंने डायमीटर को 6 सेंटीमीटर ले लिया था। खैर यहाँ पे आपका 444 होगा, जहां पे 222 था वहां पे भाई साहब 444 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी पाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपका यहाँ पे सारे आंसर्स बेसिकली डबल हो जाएंगे, ऑल आंसर्स विल बेसिकली बी डबल। तो आप इसमें से इस सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को बेसिकली आप प्लस करेंगे और उससे वो सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। So this is going to be how much of people? 31.7. ठीक है, we'll continue with this tomorrow.